زندہ رہیں تو کس کی خاطر، ہوش میں آئے کس کے لیے، زندہ رہیں تو کس کی خاطر۔ السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ ناظرین، خوبرو ہیرو شاہد کی فلم انڈسٹری میں کس کس اداکارہ کے ساتھ دوستی رہی اور کس کس بڑی ہیروئن کے ساتھ ان کے بہت زیادہ قریبی معاملات رہے، کس اداکارہ کو شاہد نے شادی کا جھانسا دیے رکھا اور کس کس کو حاصل کرنے کی ضد نے انہیں اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا۔ شاہد خود سے بڑی عمر کی اداکاراؤں میں خصوصی دلچسپی کیوں لیتے رہے؟ آدھی رات کو اداکارہ فردوس کے ساتھ قبرستان میں پولیس نے انہیں کس حالت میں پکڑا اور ان دونوں کو حوالات کی سیر کس جرم میں کرنا پڑی؟ ایسے ہی بہت سے سوالات اور ان کے تفصیلی جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ اور حقائق پر مبنی پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے۔ اپنی مردانہ وجاہت کی وجہ سے جن سے مخالف کے لیے ایک خاص کشش رکھنے والے اداکار شاہد 24 جولائی 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شاہد حمید ہے، لیکن فلموں میں اپنے نام کو مختصر کر کے شاہد کی حیثیت سے کام کیا۔ ان کا شمار بھی اردو اور پنجابی فلموں کے مقبول ایکٹرز میں ہوتا ہے۔ اپنی پہلی ریلیز ہونے والی فلم آنسو میں خوبرو شاہد نے گو کے نیگیٹو کردار پرفارم کیا، تاہم وہ فلم میکرز کے منظور نظر بن گئے۔ محمد علی، وحید مراد اور ندیم کی موجودگی میں اس طرح سے اپنی جگہ بنانا شاہد کے لیے قطعاً دشوار ثابت نہیں ہوا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں شاہد کی ریلیز شدہ فلموں کی تعداد اپنے ہم عصر ہیروز کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہی، مگر پھر اپنے کیریئر کے عین عروج پر انہیں اس وقت کی مارشل لا حکومت کے خلاف بولنے پر جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ پھر جب ان کا کم بیک ہوا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ شاہد نے تقریباً 200 کے قریب اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا۔ ان کی بہت سی فلموں نے باکس آفس پر شاندار کامیابی حاصل کی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شاہد کی غیر فلمی سرگرمیوں کے بارے میں، جو برسوں بیت جانے کے بعد بھی فلم لائن سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے بہت سے سوالات کی شکل میں معمہ بنی ہوئی ہیں۔ شاہد مالی طور پر مستحکم ہونے کی وجہ سے ضرورت مند اداکار کبھی نہیں رہے۔ ان کے نواب خاندان کا سلسلہ مقتول وزیر اعظم لیاقت علی خان سے ملتا ہے۔ روپے پیسے کی فراوانی کی وجہ سے شاہد فلم میکرز کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ بنے رہے۔ وہ اپنے کیریئر کے لیے کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے۔ فلموں اور فلم انڈسٹری میں شاہد ہمیشہ اپنی خواہشات کی تکمیل کو ترجیح دیتے رہے۔ مشرب مغرب اور خوبصورت خواتین میں شاہد کی خصوصی دلچسپی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں۔ ان کے مشاغل بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ شاہد کی والدہ ان کے بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ ممتا کے لمس سے ناآشنا ہی رہے۔ ہوش سنبھالا، جوان ہوئے تو ان کی شادی خاندان کی لڑکی منزہ سے ہو گئی، مگر عکس و آہنگ کی دنیا کے اس شہزادے نے اپنے اندر کی محرومی کو دور کرنے کے لیے فلمی پریوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس معاملے میں شاہد کو خود زیادہ تگ و دو بھی نہیں کرنا پڑتی تھی۔ ان کی شخصیت میں وہ سحر تھا جو خواتین کو اپنی جانب کھینچ لیا کرتا
करता था। फिल्मी हसीनाओं की बड़ी तादाद इन पर दिलो जान से फरेफ्ता रही। शाहिद ने खुद को कैमरे से ज्यादा मदहोशी और खूबसूरत औरतों की बाहों में पनाह लेने को तरजीह दिए रखी। फिर खुद शाहिद को भी एहसास हुआ कि गैर इरादी तौर पर इनका ज्यादा झुकाव खुद से बड़ी उम्र की औरतों की तरफ है। शाहिद पुख्ता उम्र की खवातीन में अपनी उस महरूमी का अजाला करने की कोशिश करते रहे जो इन्हें माँ की सूरत में नसीब नहीं हो सकी। अपने वक्त की तमाम बड़ी फिल्मी हीरोइंस, डांसर्स और स्पोर्टिंग अदाकाराएं भी शाहिद की कुर्बत की ख्वाहिशमंद रहीं। जो अदाकारा समझदारी से काम लेती वो इनके करीब आने के लिए शादी की शर्त आयद कर देती और अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहिद उसके साथ शादी भी कर लिया करते थे। इनकी नित नई शादी की खबरें अक्सर प्रिंट मीडिया की जीनत बना करती थीं। कई शादीशुदा अदाकाराएं सिर्फ दोस्ती तक ही महदूद रहीं। उन्होंने शाहिद की कुर्बत जरूर हासिल की मगर अपने घर को भी बचाने में कामयाब रहीं। ज़मुरद वो पहली अदाकारा थी जिसके साथ शाहिद ने शादी की मगर वो कनात पसंद कभी नहीं रहे। इनका दीगर फिल्मी औरतों के साथ भी चक्कर जरूर चलता रहा। ज़मुरद को मालूम था कि शाहिद अपने एतवार नहीं बदलेगा। वो खामोशी से तमाशा देखती रही मगर जब इशरत चौधरी के साथ शाहिद ने शादी की तो ज़मुरद ने हंगामा खड़ा कर दिया। एक फिल्म के सेट पर पहुंचकर ज़मुरद ने इशरत चौधरी के साथ ना सिर्फ गालम गलोच की बल्कि इन दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। नौखेज और कम उम्र बाबरा शरीफ शाहिद के दिल में अचानक तेजी के साथ उतरी और शादी की शर्तों को तस्लीम करते हुए शाहिद ने ज़मुरद को तलाक दे दी। मगर बाबरा शरीफ के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद शाहिद ने अपने मामूलात को पहले की तरह से जारी रखने की कोशिश की जिस पर बाबरा शरीफ ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। शाहिद जलावतनी के दौर में इशरत चौधरी को अपने साथ कनाडा भी ले गए थे। शाहिद बहुत गजब के अदाकार हैं मगर वो फिल्मों के लिए संजीदा होकर काम ना कर सके। मरहूम अदाकार आगा तालिश के तारीखी अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर शाहिद जरूरतमंद और गरीब घराने से ताल्लुक रखते तो वो पाकिस्तानी फिल्मों के सबसे बड़े अदाकार साबित होते। अदाकारा संगीता के साथ शाहिद के मरासिम सभी जानते हैं। बार बार वादा करने के बावजूद उन्होंने खूबसूरत संगीता के साथ शादी नहीं की। फिरदौस के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत मशहूर हुए। पुलिस ने दोनों को आधी रात के बाद मयानी साहब कब्रिस्तान से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो ज़ारो कतार रोते हुए एक दूसरे के गले लगे हुए थे। ये भी एक दिलचस्प कहानी है जो शाहिद ने खुद बयान की है। वो बताते हैं कि रात गए शूटिंग से घर वापस जाते हुए वो कब्रिस्तान के बाहर फिरदौस की गाड़ी खड़ी देखकर परेशान हुए मगर वो रुके नहीं और कुछ ही फासले पर पुलिस का नाका लगा हुआ था जहां उन्होंने देखा कि पुलिस ने गुलूकार मेहदी हसन को रोक रखा था और मेहदी हसन मशरूब मगरिब के नशे में पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे। शाहिद ने पुलिस से दरखास्त की कि वो मेहदी हसन को जाने दें मगर पुलिस वालों को गुस्सा था कि मेहदी हसन इन्हें गंदी गालियां निकाल रहे हैं। मामला खराब होते देखकर शाहिद ने ड्राइवर से गाड़ी बैक करवाई और वापस उस जगह पहुंचे जहां फिरदौस की कार खड़ी थी। इन्हें डर था कि पुलिस फिरदौस को भी ना पकड़ ले। शाहिद ने फिरदौस के ड्राइवर से मालूमात हासिल करने के बाद कब्रिस्तान के अंदर एंट्री की। वो अंदर पहुंचे तो फिरदौस वहां अपनी वालदा की कब्र पर बैठी रो रही थी। इत्तफाक से शाहिद की वालदा की कब्र भी कुछ ही फासले पर है। शाहिद खुद भी पिए हुए थे। वो भी अपनी वालदा की कब्र पर दुआ मांगते हुए ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए। फिरदौस के बारे में आपको बताता चलूं कि वो भी अक्सर पी लिया करती थी और उस वक्त भी वो इसी हालत में थी।
फिरदौस अपना गम भूल कर शाहिद को तसल्ली देने के लिए इनके पास आई और इन्हें गले से लगाकर खामोश करवाने लगी। यही वो वक्त था जब पुलिस शाहिद का पीछा करती हुई कब्रिस्तान में इन दोनों के पास पहुंच गई और इन्हें इस हालत में गिरफ्तार कर लिया। अगले रोज तमाम अखबारात ने इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर शाया किया। इस वाक़े से कतई नजर फिरदौस और शाहिद एक दूसरे के लिए पसंदीदगी के जज्बात जरूर रखते थे, लेकिन सोचने की बात है कि अगर इन्हें तन्हाई ही चाहिए थी, कब्रिस्तान के अलावा भी बहुत सी जगह मौजूद थीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। शाहिद के खसूसी मरासिम अदाकारा सीमा और अदाकारा चकोरी के साथ भी रहे। चकोरी जब यहाँ फैसलाबाद में स्टेज ड्रामा प्ले करने आई थी तो इसका कयाम धोबी घाट ग्राउंड के सामने रेज होटल में था। अदाकार शाहिद ने भी चकोरी के साथ ही कई रोज तक दिन रात इसी के कमरे में रहाइश इख्तियार किए रखी। अब सीमा और चकोरी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह इन्हें और हम सब को माफ फरमाए, आमीन। एक और फिल्मी हीरोइन जिसने समाज के खिलाफ सरधड़ की बाजी लगाई, उन्होंने भी मुझे अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि शाहिद रात को नशे में धुत होकर इसके घर के बाहर पहुंच जाया करते थे और इनका इसरार हुआ करता था कि अभी और इसी वक्त मुझसे शादी करो, मगर मैं शाहिद की लाउबाली फितरत की वजह से इन पर भरोसा न कर सकी, क्योंकि मैं जानती थी कि सुबह जब वो नॉर्मल होंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। प्रोग्राम काफी तवालत इख्तियार कर चुका है, मगर शाहिद की रंगीन मिजाजी के बहुत से किस्से अभी बाकी हैं जिन्हें फिर किसी वक्त पर उठा रखता हूँ। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है कि तेरी रूह मेरे जिस्म में सवाई है। जमीन वाले तुझे कैसे मुझसे छीनेंगे, तू आसमान से मेरे लिए ही है।